So today's topic is abnormal molar masses. It is the last topic of this chapter. What is abnormal molar masses? Define later on. So this is the colligative properties. This is the relation of colligative properties. It is relative lowering of vapor pressure. This term is relative lowering of vapor pressure. This is the second colligative properties, which is known as elevation of boiling point, and this is depression of freezing point, and pi is the osmotic pressure. So these are the four different relations related to four different colligative properties. In all of these relations, M2 is the molar mass of solute in the solution. M2 is the molar mass of the solute in the solution. That means by applying this relation, we can find out molar mass of solute in the solution. किसी भी solution में solute का molar mass find out करने के लिए हम लोग colligative properties का relation use करना पड़ेगा. So कौन सा colligative properties का relation use करना है to determine the molar mass of a solute in the solution, ये डिपेंड करेगा गिवन क्वांटिटीज़ का ऊपर में. जब क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बारे में मेंशन करेगा, वेपर प्रेशर का बारे में मेंशन करेगा, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन यूज़ करना है. जब क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट का बारे में एक्सप्लेन करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन यूज़ करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का. फ्रीजिंग पॉइंट का बारे में बताना से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन यूज़ करना है. ऑस्मोटिक प्रेशर का बारे में बताना से ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन यूज़ करना है. So according to this relation, M2 is the molar mass of solute. The molar mass of solute in the solution is inversely related to the colligative properties. This is colligative properties. Relative lowering of vapor pressure is inversely related to molar mass of solute in the solution. Elevation of boiling point inversely related to molar mass of solute in the solution. Depression of freezing point inversely related to molar mass of solute in the solution. Osmotic pressure pi inversely related to molar mass of solute in the solution. So from this relation we can explain that colligative properties is inversely related to molar mass of solute in the solution. That means molar mass of a solute in the solution depends on the colligative properties. When colligative properties increases, molar mass of a solute in the solution decreases. When colligative properties decreases, molar mass of a solute in the solution increases. So according to the definition of colligative properties is directly proportional to the number of moles of solute particle in the solution. किसी भी solution का colligative properties किसका ऊपर में depend करता है? Number of solute particles present in the solution. Again, number of solute particle in the solution depends on the concentration of the solution. So एक solution का colligative properties कब increase होगा? जब solution में number of solute particles increase होगा. So जब solution में number of solute particle increase होगा, colligative properties increases. When colligative properties increases, then molar mass of solute in the solution decreases. So to explain about the molar mass of a solute in the solution, let us consider an example of a solute. Normal molar mass of potassium chloride. Normal molar mass of potassium chloride is potassium atomic mass 39 into 1, chlorine atomic mass 35.5 into 1. So दोनों को प्लस करने से equal to 74.5 gram. So this is the normal molar mass of potassium chloride. This is the normal molar mass. Normal molar mass कैसे कैलकुलेट किया? कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला से. मोलिकुलर फार्मूला से सभी एटम का एटॉमिक मास को प्लस कर दिया, देन वी हैव द नॉर्मल मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. लेकिन जब पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्वेंट में डिजल्व करके जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि वाटर, पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिजल्व करके एक सॉल्यूशन बना दिया. इन द सॉल्यूशन मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, in the solution molar mass of potassium chloride is the half of the normal molar mass. Normal molar mass 74.5, इनको हाफ कर दिया, कितना हुआ? 37.25. So observe molar mass of potassium chloride. It is also called calculated molar mass of potassium chloride. It is also called experimental molar mass. So when
and potassium chloride dissolves in a solvent to prepare a solution, then its molar mass decreases in the solution. So potassium chloride का molar mass solution में decrease हो जाता है. So molar mass of potassium chloride solution में decrease हुआ, decreases to half. So this is known as abnormal molar mass of potassium chloride. So how many abnormal molar mass of potassium chloride? 37.25. So why molar mass of potassium chloride decreases in the solution? Solution में potassium chloride का molar mass क्यों decrease हो गया? क्योंकि solution में potassium chloride क्या होता है? Dissociation, that means ionization, that means breakdown. So when potassium chloride dissolves in water, suppose 1 mole potassium chloride dissolve किया in a solvent, suppose in water 1 mole potassium chloride dissolve किया, then potassium chloride is a ionic solid, so it is ionizes to potassium ion and chloride ion. So 1 mole potassium chloride जब solution में dissolve किया, then 1 mole potassium ion 1 mole chloride ion प्रोड्यूस हुआ. That means solution में total number of moles of particle कितना हो गया? 2 मोल. हम लोग डाला था कितना मोल पोटेशियम क्लोराइड? सोल्यूट 1 मोल. लेकिन solution में कितना मोल पार्टिकल बन गया? 2 मोल पार्टिकल बन गया. मतलब जब पोटेशियम क्लोराइड हम लोग वाटर में डिजल्व किया टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन, इन द सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन. सो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड is dissolves in water, it is undergoing dissociation, due to which number of particles increases in the solution. So when number of particles increases in the solution, colligative properties increases. Then when colligative properties increases, molar mass of solute in the solution decreases. So for potassium chloride, why molar mass decreases in the solution? Because it is undergoing dissociation in the solution. So thus molar mass of potassium chloride decreases in the solution because it is undergoing dissociation or ionization in the solution. Similarly, potassium sulfate, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, sodium chloride are examples of solid. They are undergoing dissociation in the solution. They are undergoing dissociation in water. Therefore their molecular mass decreases in the solution. So कब एक सोल्यूट का मोलर मास सॉल्यूशन में डिक्रीज होगा? जब सोल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, नॉर्मल मोलर मास ऑफ एसेटिक एसिड इज 60 ग्राम. नॉर्मल मोलर मास मोलिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, हाउ मेनी ग्राम? 60 ग्राम. बट इट्स ऑब्जर्व मोलर मास, इट्स मोलर मास इन सॉल्यूशन, इट्स मोलर मास इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट is equal to how many? 118 gram. That means solution में एसिटिक एसिड का मोलर मास ऑलमोस्ट डबल हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ. सो हाउ मेनी एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड? 118 ग्राम. सो एसिटिक एसिड का मोलर मास सॉल्यूशन में इंक्रीज हुआ, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास सॉल्यूशन में डिक्रीज हुआ था. क्यों पोटेशियम क्लोराइड के लिए मोलर मास सॉल्यूशन में डिक्रीज हुआ था? क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन. लेकिन एसिटिक एसिड ऐसा सॉल्यूट है जिनका मोलर मास सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हुआ, 118. 60 को डबल करने से 120, 118 ऑलमोस्ट इक्वल टू 120. सो व्हाई molar mass of acetic acid increases in the solution? Because acetic acid is undergoing association in the solution. Association मतलब large number of molecule combine होके bigger molecule बनना. 2 molecule combine होके bigger molecule बनने से bigger molecule को dimer बोलेगा. 3 small molecule combine होके bigger molecule बनने से trimer बोलेगा. Large number of small molecule combine होके bigger molecule बनने से that is called polymer. लेकिन acetic acid जब किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, इट इज़ अंडरगोइंग एसोसिएशन. एसिटिक एसिड एसोसिएशन होने के लिए एसिटिक एसिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ेगा. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सबको बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो एसिटिक एसिड कब एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में? जब एसिटिक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करेगा. लेकिन एसिटिक एसिड को वाटर में डालने से इट इज़ अंडरगोइंग डिसोसिएशन. सपोज हम लोग यहाँ कंसीडर किया एसिटिक एसिड को ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट में डिजल्व करके सॉल्यूशन बना रहा है, इसलिए एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो व्हाई मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन. एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है. दिस इज 2 मोल हम लोग एसिटिक एसिड लिया, 2 मोल एसिटिक एसिड को जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजल्व किया, देन 1 मोल डाइमर बना. कितना मोल डाइमर बना, 1 मोल. 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बिगर मॉलिक्यूल बना. दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन हुआ, दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, दिस इज 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, दिस इज 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ दिस इज कॉल्ड ए डाइमर. सो हम लोग एसिटिक एसिड कितना मोल सॉल्यूशन में डाला था, 2 मोल. तो सॉल्यूशन में डाइमर कितना मोल प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल. दैट मीन्स सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुआ. और जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस. When colligative properties decreases, then molar mass of solute in the solution increases. So in case of acetic acid, molecular mass increases in the solution because it is undergoing association in the solution. So this solute solution में association होगा, this solute solution में association होगा, for that solute molecular mass in the solution increases. So जब एक सोल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन होगा, सोल्यूट का मोलिकुलर मास सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा. लेकिन जिस सोल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन भी नहीं होगा, डिसोसिएशन भी नहीं होगा, फॉर दैट सोल्यूट नॉर्मल मोलर मास इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर मास. मतलब जो सोल्यूट सॉल्यूशन में आयनाइज भी नहीं होगा, डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा, उनका मोलर मास सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा. और डेट दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि ग्लूकोज, शुगर, दे आर द सोल्यूट, दे आर नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन. सो इन केस ऑफ ग्लूकोज, normal molar mass equal to observed molar mass. Similarly, sucrose, cane sugar, normal molar mass equal to observed molar mass. Why? क्योंकि they are neither associated nor dissociated in the solution. They are also called non-electrolyte. Now, Van 't Hoff factor, it determines whether a solute is undergoing association or dissociation in the solution. So Van 't Hoff factor I, it is the ratio of normal molar mass of solute to the observed molar mass. तो किसी भी सोल्यूट के लिए I डिटरमाइन करने के लिए सोल्यूट का नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा सोल्यूट का ऑब्जर्व मोलर मास से. जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड के लिए I कैलकुलेट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का नॉर्मल मोलर मास 74.5 को डिवाइड करना है by the observed molar mass 37.25. So in case of potassium chloride, I equal to 2. So Van 't Hoff factor I for a solute is equal to normal molar mass of solute to the observed molar mass. So one more relation to find out Van 't Hoff factor I. So Van 't Hoff factor I equal to normal molar number of moles of solute after association or dissociation divided by number of moles of solute before association or dissociation. This is one more relation to find out Van 't Hoff factor I for a solute. So for a particular solute, there are 3 possible values of I. Van 't Hoff factor I का 3 possible values होता है. For some solutes I equal to 1. I equal to 1 कब होगा? I इक्वल टू 1 होने के लिए नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास दोनों इक्वल होना पड़ेगा. कौन सा टाइप का सोल्यूट के लिए नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास दोनों इक्वल होता है? जब सोल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन भी नहीं होता है, डिसोसिएशन भी नहीं होता है. जब सोल्यूट एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है, फॉर दैट सोल्यूट नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर मास. फॉर दैट सोल्यूट Van 't Hoff factor I इक्वल टू हाउ मेनी? 1. सो व्हेन I इक्वल टू 1, for that solutes neither associated nor dissociated in the solution. For example, glucose, sugar, also called sucrose, for this solute Van 't Hoff factor I equal to how many? 1. Why? Because these are
neither associated nor dissociated in the solution. Similarly, for some solutes I greater than 1, I greater than 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास से ज़्यादा होना पड़ेगा. जब नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास से ज़्यादा होगा देन आई वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1. जैसे कि फॉर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास से ज़्यादा है. पोटेशियम क्लोराइड के लिए आई वैल्यू कितना निकलेगा? 2 निकलेगा. दैट मीन्स फॉर पोटेशियम क्लोराइड आई ग्रेटर देन 1. सो आई वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने के लिए, आई वैल्यू 1 से ज़्यादा होने के लिए सोल्यूट क्या होना पड़ेगा? सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होना पड़ेगा. जब सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा देन वेन ऑफ फैक्टर आई क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूट. Sodium chloride, potassium sulfate, calcium chloride, these are examples of solute. These are undergoing dissociation in the solution, ionization in the solution. Therefore, for this type of solute, I greater than 1. One more value of I less than 1. I less than 1 होने के लिए, I 1 से छोटा होने के लिए नॉर्मल मोलर मास कमती होना पड़ेगा ऑब्जर्व मोलर मास से. सो एसिटिक एसिड के लिए क्या हुआ था? नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास से कमती है, इसलिए एसिटिक एसिड के लिए आई वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1. सो आई वैल्यू लेस देन 1 होने के लिए सॉल्यूट सॉल्यूशन में क्या होना पड़ेगा? एसोसिएशन होना पड़ेगा. जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन होगा फॉर दैट सॉल्यूट आई लेस देन 1. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, these are the solutes, these are undergoing association in the organic solvent. लेकिन इन लोग डिसोसिएशन होगा इन वाटर, वाटर में डालने से इन लोग भी डिसोसिएशन होगा. इन लोग एसोसिएशन होने के लिए इन लोगों को कहाँ डालना पड़ेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा. व्हाट आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. So inclusion of Van Hoff factor modifies the equation for colligative properties as follows. तो colligative properties का relation लोग modify कर दिया by including Van Hoff factor I. Using this relation we can also find out the Van Hoff factor I for a particular solute. जैसे कि this is the relative lowering of vapor pressure, just I include किया. Elevation of boiling point I include किया relation में. Delta TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ आई इंक्लूड किया. ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन जहाँ आई इंक्लूड किया. सो यूजिंग दिस रिलेशंस ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वैन ऑफ फैक्टर आई फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट. सो पर्टिकुलर एक सॉल्यूट के लिए वैन ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करके हम लोग सॉल्यूट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकता है. So to calculate the degree of dissociation or degree of association for a solute, हम लोग क्या करना पड़ेगा? For that particular solute, I Van Hoff factor I and अल्फा का बीच में हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. So now what is the degree of dissociation? Degree of dissociation is number of moles of solute dissociated into ions divided by total number of moles of solute in the solution. This is the definition of degree of dissociation. और degree of dissociation अल्फा कंसिडर किया जाता है. और degree of dissociation का बारे में हम लोग ऑस्टुअल डाइल्यूशन लॉ में डिस्कस किया था इन द क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम चैप्टर. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए पर्टिकुलर सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए सोल्यूट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैन ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट फॉर दैट सोल्यूट आई एंड अल्फा का बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो यूजिंग दैट रिलेशन यू कैन कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए पर्टिकुलर सोल्यूट. सो लेट अस कंसीडर पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड टू पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन वाटर. सो इनिशियली हम लोगों का पास इनिशियली पोटेशियम क्लोराइड कितना मोल है? 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड हम लोग जस्ट लेके रखा. पोटेशियम क्लोराइड वाटर में डाला नहीं, तो वाटर में पोटेशियम आयन कितना होगा? 0 मोल. क्लोराइड आयन कितना होगा? 0 मोल. जब हम लोग 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, हम लोग कंसीडर किया पोटेशियम क्लोराइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाउ मेनी? अल्फा. इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा. सो इनिशियली डाला था हम लोग 1 मोल, तो 1 मोल से इसका कितना अमाउंट डिसोसिएशन होगा? अल्फा मोल डिसोसिएशन होगा. सो आफ्टर डिसोसिएशन
पोटेशियम क्लोराइड पार्टिकल कितना रहेगा सॉल्यूशन में 1 माइनस अल्फा। इनिशियली 1 मोल डाला था, 1 मोल से अल्फा मोल डिसोसिएशन हो गया, तो इसका अनडिसोसिएटेड पोटेशियम क्लोराइड कितना रह गया सॉल्यूशन में 1 माइनस अल्फा। और सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन कितना मोल बन गया अल्फा मोल, क्लोराइड आयन कितना मोल बन गया अल्फा मोल बन गया। मतलब अभी सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड पार्टिकल कितना है 1 माइनस अल्फा मोल, पोटेशियम आयन कितना मोल है अल्फा मोल, क्लोराइड आयन कितना मोल है अल्फा मोल। सपोज क्लोराइड आयन का आगे में 2, देन 2 अल्फा हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डालने का बाद तो सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स अभी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। सो 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन कितना है अल्फा, पोटेशियम आयन अल्फा है, क्लोराइड आयन कितना अल्फा, सभी को प्लस कर दिया, कितना निकला 1 प्लस अल्फा। सो 1 प्लस अल्फा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, 1 प्लस अल्फा particles है। So I, according to the second definition of I, Venta factor I equal to number of moles of solute after dissociation divided by number of moles of solute before dissociation. So number of moles of solute after dissociation how many? 1 plus alpha. This is 1 plus alpha. Number of moles of solute after dissociation 1 plus alpha. Number of moles of solute before dissociation. Number of moles of solute before dissociation how many mole? 1 mole. So number of moles of solute before dissociation equal to how many? 1. So finally I equal to क्या मिल गया 1 plus alpha. So this is the relation between I and alpha for which solute potassium chloride. लेकिन ये रिलेशन डिफरेंट सोल्यूट के लिए क्या होगा डिफरेंट होगा, खुद ऐसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो पोटेशियम क्लोराइड का आई वैल्यू मालूम होने से पोटेशियम क्लोराइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड आउट कर सकता है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड का अल्फा मालूम होने से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम होने से पोटेशियम क्लोराइड के लिए क्या फाइंड आउट कर सकता है वेंटा फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकता है। एंड रिमेंबर इट, आई एंड अल्फा का रिलेशन डिफरेंट होगा फॉर द डिफरेंट सॉल्यूट, खुद एस्टैब्लिश कर लेना पड़ेगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन also denoted by alpha. So acetic acid is undergoing association in the solution. So acetic acid dissolves in organic solvent to form dimer like this. So let us consider 1 mole of acetic acid dissolves in organic solvent. Just हम लोग 1 mole acetic acid लेके रखा तो solution बनाया नहीं इनका, 1 mole लेके रखा तो डाइमर कितना फॉर्म होगा 0। लेकिन जब 1 mole acetic acid हम लोग 1 मोल कंसिडर किया, इसका आगे में भी आगे में 2 है, 2 कंसिडर नहीं करना है, 1 मोल ही कंसिडर करना है। जब 1 मोल एसिटिक एसिड जब हम लोग डिजल्व किया तो डाइमर फॉर्मेशन हुआ। हम लोग कंसिडर किया एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, इनिशियली 1 मोल, इनका एसोसिएशन कितना हुआ अल्फा मोल एसोसिएशन हुआ। तो अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अनएसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा 1 माइनस अल्फा। तो 1 मोल इनिशियली था, 1 मोल से अल्फा मोल एसोसिएशन हुआ तो अनएसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में कितना होगा 1 माइनस अल्फा। और डाइमर कितना मोल फॉर्म होगा हाफ इनटू अल्फा मोल। हाफ क्यों, देखो जब 2 मोल एसिटिक एसिड डाला डाइमर कितना मोल फॉर्मेशन हुआ 1 मोल, इसका आगे में 1 है, 1 मोल फॉर्मेशन हुआ। तो 1 मोल एसिटिक एसिड डालने से डाइमर कितना मोल फॉर्मेशन होगा हाफ मोल, इसीलिए यहाँ अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया हाफ से मल्टीप्लाई किया। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, जब एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना सॉल्यूशन में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, और 2 एलसीएम लिया, अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सो now according to definition of Venta factor I equal to what, number of moles of solute after association divided by number of moles of solute before association. So number of moles of solute after association, this is 2 minus alpha divided by 2, number of moles of solute after association divided by number of moles of solute before association. Before association how many 1, before association number of moles of solute how many mole 1 mole.
So Venter factor I equal to 2 minus alpha divided by 2. So this is the relation between I and alpha for which solute. This is for acetic acid. So ये जो I and alpha का relation different solute के लिए different होता है. So I and alpha का relation बनाने के लिए हम लोग first of all ये ध्यान देना पड़ेगा solute का solution में association हो रहा है ना dissociation हो रहा है. Whether a solute is undergoing association or dissociation in the solution, it is explained in the equation. So this is about the abnormal molar masses.